السلام علیکم، میں ہوں واجد مقصود اپنے یوٹیوب چینل ایجوکیٹ سندھ کے ساتھ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے عمران خان کے جو اس کو تھریٹس ہے اس کے حوالے سے، اور ان کے لوگوں کو بڑا ایک کنسرن لاحق ہے کہ عمران خان کو شدید خطرات ہیں اور عمران خان کو اسیسنیٹ کیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے۔ یہ اس کو سیریسلی تو لینا چاہیے، لیکن اب جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ تو بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ 1977 والی سیم کنسپائریسی اسکرپٹ بھی سیم ہے، اور یہ امریکن کنسپائریسی ہے، اس کے تھرو عمران خان کو اسیسنیٹ کیا جا رہا ہے، جو کو ڈائجسٹ ہونے والی بات نہیں ہے۔ بھٹو صاحب تو ایک انقلابی لیڈر تھے، اس کے اگر آپ کام گنائیں گے تو یہ ایک چھوٹا سا ویل آج بہت کم پڑ جائے گا، لیکن ان کو آپ کو پتہ ہے اس میں اگر کنسپائریسی تھی جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، اگر پیپلز پارٹی نے بھی کھل کے بات کبھی نہیں کی کہ بھٹو کو کس نے اسیسنیٹ کرایا، وہ تو ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ضیاء الحق اس کے پیچھے تھا، اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کرایا۔ اور آبوائزلی تو ہوا بھی ایسے ہی تھا کہ ایک لالچی جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل ضیاء الحق، اور اس نے بھٹو صاحب کو ایگزیکیوٹ کرایا، اور اس کے بعد ان کے بچے بھی مروا دیے۔ یہ تو ایک مطلب ہے کہ ایک کوئی سیکریٹ نہیں ہے، اوپن سیکریٹ ہے کہ بھائی سب کو پتہ ہے کہ بھٹو صاحب کو اس طرح راستے سے ہٹایا گیا۔ لیکن اب کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کو جو ہے وہ بھی ایک امریکن کنسپائریسی کے تھرو ایگزیکیوٹ کرایا گیا تھا، اور اس میں جو لوگ انوالو تھے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی۔ آج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے کہنے پر اس کو ایگزیکیوٹ کیا۔ اب وہی ریپلے یہ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور جو لوگ جو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مطلب ہے کہ بھٹو صاحب کو جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا، اب وہ لوگ عمران خان کو سم ہاؤ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اسکرپٹ سیم ہے، ہر چیز سیم ہے، اب اس کو کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹائیں گے اور اس کو مروائیں گے۔ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرائیں، اس کو پولیٹیکلی اسیسنیٹ کرائیں، یا کچھ بھی کریں۔ اس کا برملا اظہار پہلے بابر اعوان نے کیا، اور بہت سارے لوگوں نے کہا۔ میری دعائیں ہیں عمران خان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے۔ میں کسی کی پولیٹیکل اسیسنیشنز کے بالکل خلاف ہوں، یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ضیاء الحق کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تو عمران خان کے آجو بازو میں ہیں۔ وہ تو اصغر خان جو کہتا تھا کہ اس کو اٹک قلعے پہ جو ہے پھانسی لگنی چاہیے، وہ تو اصغر خان ہمیشہ عمران خان کے بہت بڑے آئیڈل رہے۔ وہ بہت سارے لوگ جو عمران خان کے آجو بازو میں ہیں وہ تو ضیاء الحق کے ساتھ رہے۔ جنرل ضیاء الحق کے بھی یہ فیوریٹ رہے، اس کو ضیاء الحق نے اس کو دوبارہ کرکٹ میں لے کر آئے۔ تو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی یا بھٹو صاحب اب پی ٹی آئی کے اتنے فیوریبل کیسے ہو گئے، اتنے فیوریٹ آدمی کیسے ہو گئے، ایسے فیوریٹ پولیٹیشین انفیکٹ کیسے ہو گئے، اب ان کو بھٹو یاد کیسے لگنے آیا ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بھٹو کو تو آج کی اسٹیبلشمنٹ، ابھی کی بات کر رہا ہوں، کچھ روز پہلے بھی ہمارے چیف نے جو خطاب کیا لمپس میں، اس میں بھی بھٹو کی انہوں نے مخالفت کی کہ اس نے ڈی نیشنلائز کر کے ملک کو تباہ اور برباد کیا۔ بھٹو کے لیے تو آج بھی لوگ اس طرح سوچتے ہیں، اور بھٹو کو تو آج بھی ویسے تو پولیٹیکلی اس کو کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل مرڈر ہے، لیکن پاکستان کے قانون میں اس کو ایک ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے، اس کا کیس بھی نہیں سنتے، اس کے لیے تو کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا۔ لیکن اب عمران خان، جس نے ابھی مجھے نہیں پتا اس نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے، اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے، کوئی بھی تو کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ ترکی گئے تو ترکی والوں کو ناراض کیا، ملیشیا گئے تو ان کو ناراض کیا، سعودی عرب گئے تو ان کو ناراض کیا۔ کس کے ساتھ ان کے کوئی اچھے تعلقات ہیں یا تھے؟ کبھی بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں تھے۔
मुल्क में इसने सवा सत्यानाश किया। क्या किया इसने? कौन सा एक काम है जो इसने किया? आईएमएफ के साथ इसने एग्रीमेंट किया, जिसने इसने कहा कि मैं खुदकुशी करूंगा, लेकिन इसने किया। इसके अलावा मुल्क में बड़ी महंगाई, इन्फ्लेशन जो हुआ, उसके लिए इसने कोई काम नहीं किया। इसने किसी तरह की लेजिस्लेशन नहीं की। ये दोबारा सदारती निज़ाम के पीछे था, वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर। ये दोबारा 18 अमेंडमेंट को खत्म करने के चक्कर में था, वही इस्टेब्लिशमेंट के कार्ड्स थे, उन पे खेलने के लिए तैयार था। यही बार बार कहता था कि मेरे जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। यही बार बार कहता था मुझे फौज क्यों नहीं तंग करती, वो तो बड़ा फख्र महसूस करते थे। हर हफ्ते 15 दिन उसकी मुलाकात होती थी चीफ के साथ। ये एकदम क्या हुआ कि वो जो लोग इसको 2018 से लेकर, बल्कि 14 से लेकर इसको लेकर आए, इसको इतना बड़ा ग्रूम किया। इसके पास तो एक दो सीटों से ज्यादा कोई सीटें नहीं थी। इसके लिए इतने पापड़ बेले जिन्होंने जिन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया, जिन्होंने इसको ग्रूम किया, इसको सिखाया, इनके लिए लोगों को तोड़ के ले आए, दूसरी पार्टी से तोड़ के ले आए, और इनके लिए जो इंडिपेंडेंट थे वो लेकर आ गए। और अचानक ये सारे लोग एंटी स्टेट कैसे हो गए, अमेरिका के हाथों में कैसे खेलने लगे? ये मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये सारे के सारे लोग अमेरिकन की कंस्पायरेसी पे कैसे आ गए हैं? पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है, या हमारे चीफ कैसे आ गए? ये बात मुझे मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अगर किसी को समझ में आ रही है तो बता दें। भुट्टो साहब के तो बड़े मतलब एक काम थे, वो तो एक इनकलाबी लीडर था। इसके पास तो कुछ है भी नहीं। इसने किया क्या है? अच्छा, इसके लोग जो बात करते हैं वो भी इसकी कोई कंट्रीब्यूशन की बात, अभी एक मैं किसी को सुन रहा था, उसने कहा कि इसके दौर में इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग हो गई थी। क्या हुआ था इकोनॉमी का? इकोनॉमी बड़े बेड शेप में थी, बुरा हाल था। आप आईएमएफ से कर्जे ले रहे थे, और कर्जे में आपके ने जो एग्रीमेंट किए थे वो खतरनाक किए थे। आप पेट्रोल को तकरीबन 260 रुपए आपका प्रोग्राम था ले जाना, 60-70 रुपए। तो कौन सी इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग थी? और कौन सा आपने ऐसा तीर मार दिया था? आपकी गवर्नमेंट और गवर्नेंस तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। और आप कहते हैं कि आपके खिलाफ, इनके खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं है। कौन से करप्शन के केस होने चाहिए? ये गोगी का केस क्या है? ये लेटर्स जो आजकल जितनी चीजें आती हैं सारी बस फेक हैं। तो फिर आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ के साथ जो कुछ हो रहा है ये फेक केसेस है। यही वो इदारे हैं, यही वो इदारे बना रहे हैं। जितने भी केसेस शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के खिलाफ जो निकले हैं वो भी सारे फेक केसेस हैं। तो वही इदारे बना रहे हैं ना आपके खिलाफ केसेस। अभी केस तो कोई ऐसा रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये गोगी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये जो हमारे टाइकॉन साहब बात कर रहे हैं, किसी को हीरे की अंगूठियां मिल रही हैं, किसी को क्या मिल रहा है, किसी को क्या मिल रहा है, ये जितनी बातें, जितनी लीक्स आ रही हैं, ये जो वीडियोस आ रही हैं, इनका सारा जो सेंटर है वो तो इमरान खान है। वजीर आजम तो वो थे। और पंजाब ने आपने क्या किया? बोझदार कैसे आ गए जिसको आप जानते नहीं थे? तो ये सारा वेस्टेड इंटरेस्ट तो क्वाइट ऑब्वियस है। क्या लोग इतने पागल हैं, समझते नहीं है? केपी में आपने क्या किया? कहीं भी पीटीआई की अगर गवर्नेंस की बात करें, हुक्मरानी की बात करें, तो पैथेटिक रही, पैथेटिक। जो नजरियाती लोग थे वो तो चले गए, हामिद खान साहब चले गए। ये जो अभी इनके पीछे लगा हुआ है, इनके बाबर साहब जो इनके जो फॉरेन फंडिंग केस में, वो चला गया। ये जस्टिस वजीदीन चले गए। कितने अच्छे अच्छे लोग आपको छोड़ के चले गए, जो रिनाउंड, एक जिनका एक अच्छा नाम था पाकिस्तान में, वो तो आपको छोड़कर चले गए। मतलब एक कोई ऐसी एक बात बताएं जो इमरान खान ने की हो इस मुल्क के लिए, और अमेरिका आपका दुश्मन बन गया हो, या कोई भी मुल्क आपका दुश्मन, इंडिया और इजराइल आपके दुश्मन बन गए हो। क्या किया है? तो सत्यानाश किया है मुल्क का। आप तो स्टेब्लिशमेंट के कहने पे 18 अमेंडमेंट के पीछे पड़ गए थे। आप तो सदारती निजाम के पीछे आ गए थे। सदारती निजाम आपने क्या किया था? मुल्क को क्या दिया था? पानी का इतना सीरियस इश्यू, कभी उस पर बात नहीं की।
कौन सी कसमाती लीडर हैं आप, मुझे बताएं ना। मैं कोई नवाज लीग का या शहबाज का कोई इतना एडमायरल नहीं हूँ, मुझे उनकी गवर्नेंस का पता है कि वो क्या कर रहे हैं, मैं को उनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। शहबाज शरीफ जिस तरह की गवर्नेंस कर रहे हैं ये भी बड़ी डिसअपॉइंटिंग है, इस बंदे ने भी बड़ा डिसअपॉइंट किया। लेकिन मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि उनको बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, और मेरी ये उसकी नेक तमन्नाएं भी साथ है उसके साथ कि उसको अल्लाह ताला बड़ी जिंदगी दे। लेकिन ये मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए कोई इस तरह का प्लान बन चुका है या बना रहे हैं। हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि नवाज लीग जो एक अपना बदला ज़रूर लेना चाहेगी, नवाज लीग ज़रूर चाहेगी कि इसको किसी तरह अरेस्ट किया जाए, इसको टफ टाइम दिया जाए। ये नवाज लीग की पॉलिसी है। उन्होंने एक डिक्टेटर जो अपना परवेज मुशर्रफ था उसको भी उन्होंने नहीं बख्शा था, उन्होंने आर्टिकल 6 लगाया था और हुकूमत भी उसके बाद उनकी नहीं चली, लेकिन वो माफ़ नहीं करते। तो ये मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ या नवाज गवर्नमेंट, उनको कुछ भी हो जाए, वो पूरी कोशिश करेंगे कि इमरान खान को अरेस्ट किया जाए, उसको टफ टाइम दिया जाए, उस पर केसेस बनाए जाएं, ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन मैं इस कंस्पायरेसी और ये जो इंटरनेशनल कंस्पायरेसी, अमेरिकन कंस्पायरेसी या इजराइल की कंस्पायरेसी, वाट एवर आप जिसका भी नाम ले, इसको बाय करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोगों को उल्लू बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए और लोगों को इमोशनलाइज करने के लिए, एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक फिलर छोड़ा गया है। एक बात की गई है कि लोग, और अभी एक बात कर रहा था, वो कहता था कि बस कुछ भी हो जाए इमरान खान के खिलाफ, अगर उसको अरेस्ट हुआ तो किसी काल की जरूरत नहीं है, हम ऐसे निकलेंगे, हम इतना रिएक्शन करेंगे। करें रिएक्शन भाई, यहाँ तो भुट्टो को एग्जीक्यूट किया गया, यहाँ पर तो सारे जो आपके साथ है, ये मुल्ले मुल्ले, ये पीएनए तहरीक, ये कौन थे, आप इनके खिलाफ बात तो करें ना। आप कहते हैं ना कि भुट्टो साहब के खिलाफ इंटरनेशनल कंस्पायरेसी हुई थी, अमेरिकन ने मारा था, तो यहाँ के लोग जो मिले हुए थे उनके नाम लें, क्यों नहीं लेते आप थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं कि भुट्टो को रास्ते से हटाया गया। रास्ते से हटाने वाले जो थे और जिन्होंने इनका साथ दिया अमेरिकन का जो आप कहते हैं, तो वो कौन थे, आप उनका नाम तो लें। वो तो सज्जे खबे आपके साथ बैठे हुए हैं। भुट्टो अब आपको याद आ गया। तो बहरहाल भुट्टो को वाकई इस मुल्क में एग्जीक्यूट किया गया, इसमें कोई किसी किस्म के कोई शक नहीं है। इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा क्योंकि वो बहुत बड़े एक लीडर थे, लेकिन इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने उसको एग्जीक्यूट किया और आपको इस्टेब्लिशमेंट ने ऊपर चढ़ा, आपको इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया, आपको इस्टेब्लिशमेंट ने ग्रोम किया, आपको इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत आपके हाथ में दी, आपको इस्टेब्लिशमेंट ने एक लीडर बनाया। अगर आप समझते हैं अपना लीडर है, जो भी कुछ है इसमें आपकी कोई कंट्रीब्यूशन एज सच नजर नहीं आती। 25-26 साल आप अगर थे तो आपने कोई 18-19 साल आप सिर्फ एक आपके पास एमएनए या एक तो सीटें होती थी, आपके पास तो कुछ भी नहीं था। ये जो कुछ है ये एस्टेब्लिशमेंट ने आपको दिया, और आज आप कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अमेरिका के साथ मिल गई है। मुझे नहीं लगता एस्टेब्लिशमेंट, तो हो सकता है मिल गई हो, आप कहते हैं तो आप बड़े मोतबर हैं इस मुल्क में, मिल गई होगी। लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट के जो फैसले हैं वो गलत हैं। इसने अगर आपको ग्रूम किया तो गलत किया, इसने अगर आपको सपोर्ट किया तो गलत किया, इसने अगर आप पे इन्वेस्टमेंट की तो गलत की। ये फैसले तो मान सकता हूं, लेकिन ये फैसला, ये बात मैं नहीं मान सकता कि एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के साथ मिलकर आपकी हुकूमत को टॉपल किया और आपको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस तरह की कंस्पायरेसीज के कोई एविडेंस अभी तक हमें नजर नहीं आ रहे। ये बकवास से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन ठीक है, आप अपने लोगों को कहना चाहते हैं और अपने लोगों को बताना चाहते हैं, इमोशनलाइज करना चाहते हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए, तो बेशक दे दें और आपके लोग बाय भी करेंगे।
لیکن جو بندہ سوچتا ہے، 2 روٹی کھاتا ہے اور ہاؤ اینڈ وائی اس کے ذہن میں آتا ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کو اتنی بڑی کنسپاریسی آپ کے خلاف ہو رہی ہے. شکریہ.